Second life process is respiration. So you must know what is respiration. Respiration means breathing in oxygen and use that oxygen for oxidation of food so that energy is released along with carbon dioxide and breathing out carbon dioxide. This whole process considered as respiration. So in this respiration, two activities are very important. First, how would you prove that exhaled air contain more carbon dioxide as compared to air? So we will take two test tube containing lime water, this and this test tube. In one test tube, we pass atmospheric air with the help of pichkari, and in second test tube we breathe out air. What will we see? We will see that lime water of second test tube will turn milky as compared to more milky as compared to test tube 1. This shows that exhaled air contain more carbon dioxide. Now second activity is carbon dioxide is released during fermentation. What is fermentation? Anaerobic decomposition of food material. So how would you prove that CO2 is released? Carbon dioxide is released during this fermentation. So we will take fruit juice in one test tube and add some yeast in this, because yeast ferment the fruit juice. Now after some time we will connect this test tube with the help of a delivery tube, and this delivery tube ends in the lime water. When fermentation of yeast occurs, we will see that lime water starts turning milky. Lime water starts turning milky. That means कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है? ऑब्वियस है, कार्बन डाइऑक्साइड इस टेस्ट ट्यूब से आई है. सो इस टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? बिकॉज इस टेस्ट ट्यूब में फर्मेंटेशन हुआ था. सो इन दिस वे वी कैन से कि फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. नाउ रेस्पिरेशन, मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ breaking down of glucose by the oxygen to release energy. So numerically we will see respiration is breathing in plus oxidation of glucose and then breathing out carbon dioxide. Breathing is just taking in oxygen and giving out carbon dioxide, and breathing plus oxidation gives respiration. Oxidation of food occurs in mitochondria. कई बार क्वेश्चन आ जाता है, what is the site for oxidation of food? Mitochondria. हमने 9th क्लास में भी रीड किया है कि mitochondria is known as powerhouse of the cell. Why it is called powerhouse of the cell? Because it generates energy in the form of ATP. तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी ग्लूकोज से आ रही है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से आ रही है. तो देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज मेन साइट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. नेक्स्ट कम्स रेस्पिरेशन. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. Respiration are of two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic and anaerobic. Aerobic respiration take place in presence of oxygen, and in this more energy is released. Anaerobic take place, an means न की sound आ रही है, that means not in the presence of oxygen, means in the absence of oxygen, and इसमें less energy is released. अब this is very important question कि show the oxidation of glucose with the help of flow chart.
ये एनसीईआरटी में भी आपका फ्लो चार्ट दिया हुआ है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है। ग्लूकोज, वी नो दैट ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, तो दैट मीन्स ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में चेंज होते हैं एंड पायरुवेट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, मीन्स एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने। कहां पर बने, साइटोप्लाज्म में बने। अब इस पायरुवेट से 3 तरीके से ब्रेकडाउन हो सकता है। फर्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसा हमने ऊपर फर्मेंटेशन में पढ़ा है, यीस्ट, तो उसमें जब इस पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है तो इस पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड एनर्जी बनती है एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP ऑफ एनर्जी। सो हम इस फ्लो चार्ट से ही पता लगा सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है एनर्जी कम बनी है, लैक में भी कम बनी है, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 38 ATP, यहाँ पर जो एब्सेंस में सिर्फ 2 ATP बनती है और प्रेजेंस में 38 ATP जो है एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई थिंक आपको ये समझ आ गया। नाउ रीजंस फॉर मसल क्रैम्प्स, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाई मसल क्रैम्प्स टेक प्लेस। तो हमने जैसे पढ़ा है कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन, जब पायरुवेट की ऑक्सीडेशन जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और ये जो लैक्टिक एसिड है ये मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है और उससे मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन और गैसेस की एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा। इस बार बोर्ड में क्वेश्चन आया कि टाइनी पोर्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा और उसके जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, गार्ड सेल्स, जो इसकी रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन एंड रेस्पिरेशन। नाउ रात को स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ड्यूरिंग डे स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि एनिमल्स जो होते हैं वो दिन में भी ऑक्सीजन लेते हैं और रात को भी ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स जो हैं सुबह ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करते हैं एंड लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करते हैं। और एज उन्होंने सुबह इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट खाना बनाना होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, जबकि एनिमल्स दिन में भी ऑक्सीजन लेते हैं और रात को भी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर। आपने एक्वेरियम देखा है, उसमें आपने फिशेस देखी होंगी, वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ इन करती हैं। व्हाई दे ब्रीथ इन सो फास्ट? बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन because the amount of oxygen present in water is less, so in order to breathe properly they breathe very fast. Now question is, what is common in all respiratory organs? All respiratory organ means we have lungs, we have alveoli, और जो insect होते हैं they breathe through spiracles, some breathe through trachea. So what is common in all the
respiratory organs. They are designed in order to increase surface area to better exchange of gases. Now, अब हमने डाइजेशन में फूड पाइप इसोफेगस के बारे में पढ़ा है और इस रेस्पिरेशन में विंड पाइप. तो ये जो फूड पाइप और विंड पाइप है ये साइड बाय साइड चलती है जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो. एंड इसके बीच में एक स्किन का फ्लैप होता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस. ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप को कवर करता है और जब हम बोलते हैं तो ये फूड पाइप को कवर कर लेता है. अब हमने कई बार देखा है कि यदि हम खाना खाते हुए बोलते हैं तो ये हमें बहुत तेजी से एकदम खांसी आ जाती है. क्यों? बिकॉज इंस्टेड ऑफ फूड पाइप थोड़ा सा खाना विंड पाइप में चला गया है एंड ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन वो बाहर आता है और हमें बहुत तेजी से खांसी आ जाती है. नाउ ट्रैकिया. ट्रैकिया इज पैसेज फॉर द एयर एंड इट हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. एंड क्वेश्चन आता है व्हाई ट्रैकिया हैव रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कलेप्स. जैसे हमें बहुत तेज खांसी आती है, बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो उस टाइम ट्रैकिया कलेप्स ना हो जाए इसलिए इसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बनाया होता है. नाउ पैसेज ऑफ एयर इन ह्यूमंस. अभी हम इसका डायग्रामेटिकली भी करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज पैसेज ऑफ एयर इन ह्यूमन. तो हम बाहर से जब एयर लेते हैं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू लेते हैं. नॉस्ट्रिल से हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है नॉस्ट्रिल में जो क्या करता है ट्रैप कर लेता है डस्ट और जर्म्स और उसे स्लाइटली वार्म करके ट्रैकिया में भेजता है. ट्रैकिया से ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स एंड अल्टीमेटली जो आपकी एयर है ऑक्सीजनेटेड वो एल्वियोली में पहुंच जाती है और एल्वियोली में जो है बेटर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है. बिकॉज एल्वियोली जो है वो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर बेटर एक्सचेंज ऑफ. व्हाट इज कॉमन इन विलाई एंड एल्वियोली? अब आपने विलाइज कहाँ पढ़ा है? विलाइज आपने पढ़ा है जब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड एल्वियोली इज प्रेजेंट इन लंग्स. तो इट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट व्हाट इज कॉमन बिटवीन विलाई एंड एल्वियोली. विलाई एंड एल्वियोली. तो विलाई एंड एल्वियोली as they both provide surface area for exchange of nutrients and gases and both are richly supplied with blood capillaries. Okay, now come mechanism of breathing. Breathing means जब हम ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं तो उसका क्या मैकेनिज्म है? उसका मैकेनिज्म है फर्स्ट इनहेलेशन एंड सेकंड इज एक्सहेलेशन. अब इसमें हम इनहेलेशन की फ्लो चार्ट पढ़ेंगे तो उसका अपोजिट बिल्कुल एक्सहेलेशन में हो जाता है. इन इनहेलेशन वी ब्रीथ इन. व्हेन वी ब्रीथ इन रिब्स लिफ्टेड, डायाफ्रागम फ्लैटेंड. ड्यू टू दिस चेस्ट कैविटी enlarge. When chest cavity become large, the pressure inside the chest cavity decreases, and in order to maintain the pressure we breathe in. And in contrast, in exhalation, ribs comes in normal position, diaphragm comes in normal position, chest cavity जो है अपनी स्मॉल हो जाती है साइज में, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड वी ब्रीथ आउट. दिस इज हाउ exchange of gases occurs in lungs. When we breathe in, oxygen is sucked into the lungs, alveoli expand and carbon dioxide comes out. अब alveoli में जो exchange of gases होती हैं, the main process is diffusion. Diffusion के through exchange of gases
हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड कम्स बैक एंड ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है वो सभी सेल्स में चला जाता है. नाउ कम रेसिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर. व्हेन वी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट तो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारी लंग्स में रह जाती है. दिस इज नेसेसरी सो दैट जो टाइम गैप है कार्बन डाइऑक्साइड के जाने का और ऑक्सीजन के आने का, उस टाइम लंग्स कलेप्स ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ी सी जो है वो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रहना जरूरी है. तो now after residual volume of air, next is hemoglobin. What is hemoglobin? The red pigment present in the blood. Blood is red due to the presence of this pigment called hemoglobin. और hemoglobin की वजह से जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रेवल होती है. हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी कैरियर होता है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है एंड therefore oxygen reaches to every part of the body. Now why carbon dioxide do not need a medium to travel? जैसे ऑक्सीजन के लिए मीडियम चाहिए हीमोग्लोबिन, we do not need a medium for carbon dioxide because carbon dioxide is soluble in water, so it is transported in dissolved form. कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सॉल्यूबल हो जाती है, तो ये वाटर के अंदर ही सॉल्यूबल डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट हो जाती है. नाउ कम रेस्पिरेटरी सिस्टम. दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब ये देखो यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो है एयर हम ब्रीथ इन करते हैं. वी हैव टू नॉस्ट्रिल्स विच हैव हेयर. हेयर और म्यूकस ग्लैंड होते हैं ताकि फिल्टर हो जाए एयर. इसीलिए कहा जाता है कि वाई इट इज एडवाइजेबल टू ब्रीथ थ्रू नोज नॉट थ्रू माउथ. आफ्टर दैट द एयर गोज टू फेरिंग्स एंड देन टू ट्रैकिया. ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप. अब ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सो दैट इट डू नॉट collapse. Trachea is further divided into two bronchus and these bronchus further divided into branch-like structure called bronchioles. Bronchioles ends with alveoli. Alveoli, this is alveoli, balloon-like structure to provide large surface area for better exchange of gases. Now again come glottis, epiglottis. Glottis is the opening of trachea or windpipe and it has a flap over it that is called epiglottis. Trachea. Trachea have rings of cartilage. These are four important questions. Why trachea have rings of cartilage? What is common in all respiratory organs? What is common in villi and alveoli? And why rate of respiration in aquatic animal is faster? These four are very important questions. Now next topic is transportation. Transportation or circulatory system. So transportation includes blood, blood vessels and heart. Blood have four components in it: RBC, WBC, plasma and platelets. RBC is red blood cell and it is red blood. It is red due to the presence of pigment called hemoglobin. WBC, white blood cell which provide immunity to the body and therefore they are known as soldiers of the body. Plasma, the liquid part of the blood is called plasma. Fourth is platelets. Platelets is that component of blood which helps in blood clotting. यदि प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो हमें यदि छोटी सी एक पिन भी यदि हमें चुभ जाती है तो ब्लड जब तक बॉडी का पूरा ब्लड बाहर नहीं आ जाता तब तक ब्लड फ्लो होता रहता है.
तो दिस इज ड्यू टू प्लेटलेट्स कि जो ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है. ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. नाउ फंक्शंस ऑफ ब्लड. What are different functions of blood? Blood helps in transportation of nutrients, waste, oxygen and hormones. Also, as it has WBC, it helps in fighting against infection or disease causing germs. It also helps in the regulation of temperature of the body. Next come blood vessels. 3 blood vessels are present, that is arteries, veins and capillaries. This is very important question. बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है कि what is difference between arteries and veins. Arteries transport oxygenated blood in the body except pulmonary artery. Except pulmonary artery, only artery which carry deoxygenated blood. And veins transport deoxygenated blood except pulmonary vein. Arteries are deep seated, veins are superficial, ऊपर ऊपर होती है. प्रेशर जो आर्टरीज में होता है ब्लड का बहुत हाई होता है, बिकॉज वो ब्लड हार्ट ने पंप किया है तो वो हाई प्रेशर पे है और देयरफॉर ये इलास्टिक और थिक होते हैं. वेयर एज जो वेन्स है उसमें ब्लड लो प्रेशर में होता है और ये थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है. नाउ आर्टरीज डू नॉट हैव वेल्व, वेन्स हैव वेल्व टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड. आर्टरीज हैव वाइड ल्यूमन वेयर एज वेन्स आर नैरो. नाउ थर्ड इज कैपिलरी, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल एंड हैव 1 cell thick. They help in exchange of material between blood and surrounding. They help in exchange of material between blood and surrounding. Next, after arteries and veins, next is heart. Human heart का जो size होता है, it is equal to the fist, and it is divided into 4 chambers. Right atrium, right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. Now this line is septum. Septum do not allow mixing of deoxygenated blood and oxygenated blood, because जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उनके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी वजह से दे डू नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब हम वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ेंगे कि हाउ हार्ट वर्क, हाउ ब्लड कम्स टू द हार्ट एंड ऑक्सीजनेटेड becomes oxygenated. So first of all, this is superior vena cava and this is inferior vena cava. Superior vena cava हार्ट के ऊपर वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करती है. वेन inferior vena cava हार्ट के लोअर पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके लाते हैं एंड poured into राइट ऑरिकल. सबसे पहले आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर मैंने इसे ब्लू कलर से शो किया है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया आपका राइट ऑरिकल. अब राइट ऑरिकल से इट गोज टू राइट वेंट्रिकल वाया ट्राइकस्पिड वेल्व. दिस इज ट्राइकस्पिड वेल्व. मैंने आपको बताया कि आर्टरीज और वेंट्रिकल्स के बीच में वेल्व होते हैं so that they prevent backflow of the blood. इन वेल्व से जो ब्लड है वो कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में. अब आपके पास जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आ गया राइट वेंट्रिकल. अब फ्रॉम राइट वेंट्रिकल with the help of pulmonary artery, only artery which carry deoxygenated blood,
ब्लड कहाँ चला गया, देखिए एरो शो कर रहे हैं कि ब्लड आपका पहुंच गया लंग्स के पास। लंग्स में एल्वियोली थे, एल्वियोली ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और इस ब्लड को ऑक्सीजन दे दी। अब नाउ जो ब्लड है वो बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और अब ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट ऑरिकल में। अब जैसे इधर इस साइड ट्राइकस्पिड वाल्व थे, उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, जिससे ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में है इट कम्स टू राइट वेंट्रिकल। तो लास्ट जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल with the help of longest artery of the body, that is aorta. This is longest artery of the body, aorta. It goes to every part of the body. Now see, this left ventricle have thick wall. देखिए यहाँ पर मैंने ये thick wall बना रखी है। क्यों होती है thick wall? मैंने आपको बताया हार्ट का जो साइज है वो फीस्ट जितना होता है। अब फीस्ट का भी 1/4 पार्ट होता है जिसका साइज लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद हाई प्रेशर so that it can reach to each and every part of the body. So in order to overcome that high pressure, the walls of left ventricles are made thick. ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जाता है। Very important. Why ventricles are thick? Because ventricles have to pump the blood with pressure. This is the pathway. अब कई बार पूछ लेते हैं कि show the pathway of oxygenated blood and show the pathway of deoxygenated blood. So first of all, body have deoxygenated blood and with the help of vena cava, it goes to right atrium. Through right atrium goes to right ventricle with help of tricuspid valve. Pulmonary carry this blood to lungs. Lungs oxygenate these blood and pulmonary vein carry this blood to left auricle. From left auricle goes to left ventricle with the help of bicuspid valve. And left ventricle pressure से इसको pump this blood with high pressure and send to all parts of the body with the help of longest artery called aorta. So body to right atrium to right ventricle to lungs deoxygenated का पार्ट है और lungs to body oxygenated का पार्ट है। देखो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, why ventricles are thick walled to overcome the pressure? ये मैंने आपको बताया because ventricles have to pump the blood with high pressure. And why veins have valve? To prevent backflow of the नाउ लिम्फ। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, सिमिलरली एक और लिक्विड हमारी बॉडी के लिम्फ नोड्स में ट्रेवल करता है जिसका नाम है लिम्फ। लिम्फ इज फॉर्म्ड व्हेन कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, जब कैपिलरीज में कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, दे escape into the intercellular spaces into the tissue, so that forms lymph. lymph की characteristics क्या होती है कि colorless होता है and has less protein and drains into lymphatic capillary. जैसे blood arteries और veins में चलता है, इसी तरह जो lymph है वो lymphatic capillaries में flow. Now transportation in plants. हमने 9th में भी पढ़ा है टू वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। तो दीज आर टू कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इज प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ द प्लांट and it transport water and mineral from roots
to different part of the plant through tracheates. And the flow of xylem is unidirectional. Flow of xylem is unidirectional. And removal of excess water from the plant is known as transpiration. On the other hand, phloem transport food from leaves to all parts of the plant with the help of sieve tubes. अब ये एक डिफरेंस आ जाता है कि जाइलम ट्रेकीज की हेल्प से पानी को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेयर एज फ्लोएम सीव ट्यूब की हेल्प से करते हैं. जाइलम का जो मूवमेंट है यूनिडायरेक्शनल है और फ्लोएम का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल है. अब क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन ट्रांसलोकेशन. तो ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. और इसको ज़्यादा वेटी बनाने के लिए आप कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब. इससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर आता है. नाउ लास्ट लाइफ प्रोसेस इज एक्सक्रीशन. व्हाट इज एक्सक्रीशन? फर्स्ट हमने किया डाइजेशन, फिर हमने किया रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ द लास्ट life process is in this chapter is excretion. So how would you define excretion? Excretion is biological process involved in removal of waste product from the body. Removal of waste product and it is a biology. वैसे हम कहते हैं removal of waste product from the body, but scientific definition is biological process which are involved in removal of waste. अब body waste के अंदर क्या क्या आता है? It contains salt, excess salt, urea, uric acid and excess water. Now this is excretory system of human being. और ये इस बार 3 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें आप 5 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें 2 मार्क्स का उन्होंने पूछा कि व्हाट आर वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. तो दीज वर किडनी, यूरेटर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑर्गन्स कंसिस्टिंग ऑफ excretory system, that is kidney, ureter, urinary bladder and urethra. So what is the function of kidney? Kidney helps in filtration of salt, urea, uric acid from blood. Ureter passes this urine to urinary bladder. Urinary bladder act as storehouse of the urine. और when urinary bladder full हो जाता है तो ये मैसेज देता है ब्रेन को कि आई वॉन्ट टू मिक्चुरेट, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू पैसेज हो जाता है. नाउ किडनी में ऐसा क्या है जो यूरिन फॉर्मेशन करता है? एक्चुअली किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स which is called nephron, and therefore nephron is known as structural and functional unit of kidney. This is the diagram of nephron and functioning of nephron. So first of all, renal artery जो है वो blood along with urea, uric acid, salt ये लेकर आती है इस tuft of capillaries glomerulus के पास. And glomerulus is tuft of capillaries. Why it is tuft of capillaries? Because to provide surface area for exchange of material. Now from here filtration occur. तो जो blood से यूरिया, यूरिक एसिड है वो इस C शेप बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है. ये बोमेंस कैप्सूल है, दिस इज बोमेंस कैप्सूल. और बाकी जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो वापस बॉडी में चला जाए. बोमेंस कैप्सूल से ये जो फिल्टर्ड जो यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर है कम्स टू पीसीटी, हैंडलेज लूप एंड देन डीसीटी एंड फाइनली इट इज कलेक्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट. अब अगेन दिस ब्लू कलर इज कैपिलरी अराउंड द पीसीटी एंड डीसीटी
फॉर फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, कि बाय चांस यहाँ पर 100% यदि फिल्ट्रेशन नहीं हुई तो बाकी फिल्ट्रेशन इस पार्ट में हो जाए। नाउ मिलियंस ऑफ दिस नेफ्रॉन जो है वो यूरिन फॉर्म करते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन दी किडनी, और उसके बाद जो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हो जाए। तो देखो दिस इज द फ्लो चार्ट टू शो द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। फर्स्ट रीनल आर्टरी से ग्लोमेरुलस, फिल्टर हुआ, ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में गया, फिर रीफिल्टर्ड हुआ पीसीटी, डीसीटी एंड फाइनली कलेक्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट। अब कई बार क्या होता है कि किसी हाई शुगर की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से किडनीज खराब हो जाती, तो उस टाइम या तो किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाए। अब किडनी ट्रांसप्लांटिंग इज नॉट अ चीप प्रोसेस, इट इज़ वेरी कॉस्टली, और दूसरा किडनी मे और मे नॉट सूट टू दी रिसीवर्स बॉडी। तो उस कंडीशन में जो बॉडी है वो डायलिसिस पर चली जाती है। डायलिसिस में क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जो है ब्लड को बॉडी से बाहर निकालते हैं और उसे फिल्टर करके वापस बॉडी में डालते हैं। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई ह्यूमन्स ही एक्सक्रीट करते हैं या एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट। फॉर एग्जाम्पल CO2, फर्स्ट वेस्ट प्रोडक्ट इज CO2 and O2. This is excreted with the help of stomata. Excess water through transpiration. Waste products are stored in leaf, और लीफ फिर येलो हो जाती है एंड फाइनली शेड ऑफ। टैनिन्स एंड अदर प्रोडक्ट, ये जो है बार्क ऑफ प्लांट में स्टोर हो जाते हैं और इसे फिर रिमूव कर लिया जाता है। एंड इन दिस वे excretion in plants takes place. I think now you people are clear with the topic excretion. Thank you.